Yeah. Long live! Long live! Long live! Long live! हेलो जितने भी पीछे पे बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं मैं सब रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया करके आप सभी इधर आ जाइए आगे को। इसको खोने नहीं देना है। अब पॉसिबल अभी वहाँ एक जो सवाल वही पूछ लीजिए सर से। और आगे हम लोग जो मेन होस्ट थे आप लोगों को बताया स्पीच के बाद हम लोग आप लोगों के और भी ढेर सारा एंटरटेनमेंट जो आइटम है प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। देन आपका लंच है तो रिक्वेस्ट थैंक यू सो मच। हेलो श्री मार्जता को आज की तरफ से प्लीज गिव a big round of applause. अब गया था मिला था And also I please give a big round of applause. Long live! Long live! Long live! Long live! Bhopal! 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 Long live! Sir, atun to all the executive members of APUSU, James Tamut, Atunto, Kamder, Kadar Tamut, Zidan Dao, Among Margin, कृपया करके आप सभी स्टेज पे आ जाइए and also like to request a general मने होगा नहीं मने श्योर होगा मुझे तक आपसे प्रेसिडेंट होगा वो कभी नहीं झुकेगा जैसे पुष्पा समर्थन और प्यार from the beach of to panyo support and blessing from kamne to guru siang suban sri बोले एकता में ताकत है तवन होली फेस और करादादी के पहाड़ों से मुझे को जिताओ अपने प्यार और दुआओं से TCS long live long live long live Bhopal 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 long live Well, first and foremost, dear students of JNC, APU, and dynamic student leaders of Adi community,
Galo community and dynamic student leaders of District Student Union and representative of Rajiv Gandhi University, the representative of NERIS. Takame Agampe? Well, today I'm standing here in Pasighat. It's not just a stage or soil or district. I'm standing here on the very soil where the spark of students' movement first began to beat. मुझे हर किसी ने बुलाया इस presidential, the prestigious post of the presidential candidate for ensuing APSU election. I was invited from the Galo community, I was invited from the Adi community, I was invited from the Mismi community, I was invited from the Hamti, I was invited from the Nokte, Wangcho, Mompa, Nishi, from every nook and corner. तो उस चलते मीटिंग में रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया for free and fair election. There should be representative from president and secretary candidate in the enrollment committee. तो उसके बाद में उस चलते we have meeting with the organizing committee, enrollment committee, chief election commissioner, outgoing caretaker president, and all the aspiring candidates. Meeting चलते we have submitted various representations for free and fair election. Number 1, representative from president, secretary, and वो हर एक enrollment book में sign करना है. That is approved now. And number 2, the election commission में हमारा member होना है. वो approve हुआ. And number 3rd point, वो लोग ने हर एक students को, आरजू का, NIT का, NERIS का students को APSU ऑफिस में बुलाया enrollment के लिए. हम लोग ने entire aspiring candidate में हम लोग ने कहा कि no. आप लोग ने देखा हर किसी से 500 रुपए एनरोलमेंट फी मांगा. हम लोग ने एस्पायरिंग की ओर से, एस्पायरिंग कैंडिडेट की ओर से हम लोग ने मांग रखा कि नो, द एनरोलमेंट शुड बी फ्री. द रीजन इज दैट टुडे, आज का तारीख में हर एक ऑनरेबल मिनिस्टर से, हर एक ऑनरेबल एमएलए से, हर एक ऑनरेबल चेयरमैन से, एचओडी से, डायरेक्टर से, चीफ इंजीनियर से 5 गुण 3 तक को नहीं छोड़ रहा. आप क्यों स्टूडेंट को तो कम से कम छोड़ दो. इस तरह कह के हम लोग ने मांगा, लेकिन वो लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया. देन हम लोग ने कहा ओके, आप लोग अगर इतने स्टूडेंट्स को छोड़ना नहीं चाहता है तो वी द एस्पायरिंग कैंडिडेट आर रेडी टू पे एनरोलमेंट फीस. आप अमाउंट बताइए. उसने कहा 1 करोड़. तो हम लोग ने कहा नो, 1 करोड़ हम लोग नहीं दे सकेगा. बार्गेनिंग कर करके आया. Lastly 40 lakhs में फिक्स किया and we deposited 40 lakhs to the enrollment committee. That's the reasons today all the enrollment fee, the 500 rupees has been free. वहाँ पे हम, when I was in general secretary of Arunachal Student Union Shillong, वहाँ पे हमारा जब मैंने विटनेस किया, there was a communal, हमेशा फाइटिंग होता है. Adi versus Galo versus Nishi versus Tagin. इस तरह का हमेशा फाइट करके बैठा. और हमने देखा the major tribe of Arunachal Pradesh like Adi community, Galo community, Nishi, वो सब जो है अपना फेस्टिवल को माना सक रहा था. तो एक अपना अलग अलग करके when I was elected as a general secretary of Arunachal Student Union Shillong, I started movement for the Pan Arunachal. मैंने कहा no, हम लोग का यहाँ अरुणाचल का जितने भी शिलोंग में पढ़ाई करता है, we should known as a Arunachali, not as a Galo, Adi, Apatani, Nokte, Wangcho. वो हिसाब से नहीं, we should known as community of 26 major tribe, 100 plus सब हर किसी को represent करना है. इस तरह करके हम लोग ने एक फेस्टिवल शुरुआत किया for Pan Arunachal movements. That is known as a Arunachal Tribe Festival. आज का तारीख में मेगा अरुणाचल ट्राइब फेस्टिवल का नाम से जाना जाता है. और आज का तारीख पे my young students, friends of JNC and APU, मैं ये कहना चाहूँगा, I know the problem which you know specific जब यहाँ मैं बात करता हूँ तो मैं मुझे पता है. आज का तारीख पे APU में आपका पास बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है. आने वाला दिनों में if I am elected as a president of APSU, there will be proper boys and girls hostel.
जल्द से जल्द बनेगा। दिस इज माई वोट टू यू। एंड जेएनसी पासीघाट को मैं पूछना चाहूंगा, आपका हॉस्टल प्रॉपर है? आज का तारीख में मास्टर स्टूडेंट्स और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स सेम हॉस्टल सेम कैंपस में बैठा है। इज इट फेयर? दिस शुड बी, इफ आई एम इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट आपसू, ये मेरा वोट है, आपका हॉस्टल सेपरेशन होगा। मैं ये आप सबको कहना चाहूंगा, आज का तारीख पे आपसू क्या कर रहा है? आपसू का लीडर ऑफिस में जाके वॉक ऑर्डर मांग रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके एजुकेशन पॉलिसी का बात नहीं करके एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके यूनिफॉर्म सप्लाई का बात कर रहा है, टेक्स्ट बुक सप्लाई का बात कर रहा है, एसेसरी सप्लाई का बात कर रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का बात कर रहा है, वॉक ऑर्डर मांग रहा है। ये स्कूल का टॉयलेट सेक्शन हुआ है, हमको वो काम करने दो। ये स्कूल का एक क्लास एडिशनल का सेक्शन हुआ, हमको काम करने दो। मार्केट में जाके लैब तो फ्री में उतारा है, ये हम आपसू का लीडर है, यो लो विजिटिंग कार्ड। पेट्रोल पंप में जाके हम आपसू का लीडर है, लो ये विजिटिंग कार्ड, तेल फ्री में डालो। हर एक पान गुमती को छोड़ता नहीं है। हर को कहाँ रहना चाहिए? आपसू को टॉप में रहना चाहिए। आपसू को हर एक स्टूडेंट्स का इश्यूज में बात करना चाहिए। उसके लिए बात करने के लिए आपसू का लीडर बात नहीं करके वॉक ऑर्डर का टेंडर का आज बात कर रहा, सप्लाई ऑर्डर का बात कर। सो माय यंग स्टूडेंट्स फ्रेंड्स ऑफ जेएनसी पासीघाट एंड एपीयू, दिस इज राइट टाइम टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव। आप सबको क्लियर कट कॉल करना चाहूंगा, वो समय आपसू जब यहाँ से जन्म हुआ तो आज दोबारा रीजन्म नया आपसू का जन्म, आप सब फिर से इस जन्मभूमि से आप लोग शुरुआत कीजिए। जेएनसी और एपीयू आप सब करेगा, आप सब कर सकता है। आपसू का जन्म माय इलेक्शन, दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी फाइनल अटेम्प्ट। इसलिए मैं बस आप सबको कहना चाहूंगा, गिव मी ओनली and only one chance, one opportunity। आप सब ने हर किसी को मौका देके देखा, इस मेजे ताकू को एक बार देखिए। मैं बताना चाहूंगा आपको, आज का तारीख में द प्रेसिडेंट ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स फ्रॉम तालू, हाँ बताइए प्लीज आ जाइए। इज फ्रॉम करानादी, उसका करानादी से कैंडिडेट आ रहा है। इस रिसर्च स्कॉलर्स फोरम का प्रेसिडेंट है आरजू का, इसका डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट आ रहा है। देखिए इसका कहना है कि नो डिस्ट्रिक्टिज्म, ओनली इंटेलेक्चुअल्स वुमेन। जनरल सेक्रेटरी नाबुम साहा, इज फ्रॉम पापुम पारे, लेकिन इसका डिस्ट्रिक्ट से भी कैंडिडेट आ रहा है। इसका कहना है कि नो मोर डिस्ट्रिक्टिज्म, दिस इज टाइम टू चेंज आपसू। इसलिए ये आज मेरा साथ है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेरिस रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जॉन ईगन, अब आइए। ही इज फ्रॉम अपर सुबनसिरी। इसका कहना है कोई भी कैंडिडेट आओ, पर आपसू को ठीक करना है तो सही प्रेसिडेंट आ रहे हैं। जीएस मुलक भाई आओ, ही इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेरिस रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन। इसका कहना है जीरो से भी कैंडिडेट आ रहा है आपत्ति कम्युनिटी से। इसका कहना है कि आपसू को इफ वी वांट टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ आपसू, हम लोग प्रेसिडेंट को ठीक करना है। तो आई मीन टू से राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट डेनियल जॉन कॉली, अच्छे दिव्यांग उसका वो छोटा भाई है, लेकिन उसका कहना है नो रिलेटिविज्म, ओनली इंटेलेक्चुअल। टुडे he is also with us। मेरे एनआईटी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को पूछो, उसका कहना है नो रिलेटिविज्म के लिए आप आवाज लगाइए। आर यू रेडी? आर यू रेडी? लेट्स मेक अ न्यू आपसू, स्ट्रॉन्ग आपसू। एंड लास्टली, और ये हम उम्मीद करते हैं आज जो यहाँ बैठा है, आने वाला दिनों में यूपीएससी में बोलो, एपीसीएस में बोलो, एंटरप्रेन्योरशिप में बोलो, आप सब टॉप करेंगे, ये उम्मीद के साथ जा रहा हूँ। विद दिस फ्यू वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच एंड लव यू पासीघाट। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव जेएनसी।
आप पहले से मजे तक को जानता था जो ये नहीं मालूम नहीं था। मालूम नहीं था ना, तो अभी आज उसका स्पीच सुन के आपको कैसा लगा? स्पीच पूरा अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। हाँ स्पीच पूरा अच्छा है, पूरा अच्छा बोलते हैं। तो अभी आप क्या कहना चाहेगा इसका ऊपर? हाँ ठीक है, वो सपोर्ट करेगा, वो बस ओके, तो वोट किसको देगा? लाइक आप सोचना पड़ेगा कि उसका स्पीच सुन के आपको कैसा लगा? हाँ हम उसका स्पीच को सुन के पूरा अच्छा लगा, तो बस इसको सपोर्ट करेगा, ये सोच रहे हैं बस। अच्छा लगा है मजे तक को ना, वोट पर मजे तक को। हाँ मजे तक को अच्छा था, स्पीच बहुत अच्छा लगा है। सेन जी लेट्स गो मजे तक को। तो आप जो आज का स्पीच को सुन के ना, आपका दिल में क्या मोटिवेशन आया है? एक मोटिवेशन है कि लीडर हो तो ऐसे ना, जो स्टूडेंट का हक में बात कर सके, बहुत अच्छा लगा हमको जब मजे तक को ऐसे अच्छा बात किया है ना। आज पर्सनली हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं मजे तक को, बट उसका स्पीच सुन के लगा है कि हाँ he is deserving. Let's go. थैंक यू। मुझे इतना मतलब बढ़िया माहौल में आप सभी के सामने अपना बात जो विचार को जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, तो सबसे पहले जितना मैंने यहाँ में आके एक्सपीरियंस किया है, जिस प्रकार जो हमारे एस्पायरिंग कैंडिडेट अपना मजे ताकू जी ने जिस तरह से पावरफुल स्पीच दिया है, उसको सभी ने देख के जो है प्रोत्साहन, एक एनर्जेटिक और एक एनकरेजमेंट आया है ना, तो हम तो स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं ना। तो जिस तरह से उन्होंने स्पीच दिया, जिस तरह से उन्होंने इंश्योर किया कि आपसू अरुणाचल को किस तरह से आगे लेके जाना है, अगर वो जीत के अगर कुछ इस तरह से करता है तो हमारे लिए, हमारे अरुणाचल के लिए, हमारे जो यंग यूथ्स के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक एनकरेजमेंट देगा। तो यही मुझे यहाँ आके लगा, और मैं तो ऐसे दिल से चाहता हूँ कि वो जीते ना, उसके बाद मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू, यहाँ में आके एक्सपीरियंस अच्छा लगा, हम दिल से सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। और मैं हिंदी डिपार्टमेंट फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रही हूँ। ओके, तो आज आपको जो है ये जो कैंडिडेट जो मजे तक का ये स्पीच आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन भी हुआ कि जो मुद्दों के बारे में वो जो बात किया है, एक्चुअली ये सब जो स्टूडेंट का नीड्स होता है ना, और हम सभी भी यही चाहते हैं कि अगर हम सभी जो है एक स्टूडेंट लीडर जो हम लोग चुनने से उन मुद्दों के बारे में बात करें जो हम लोग के लिए सपोर्ट होगा ना, हम लोग को जो है वो सब चाहिए होता है ना करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा कि जिन जिन मुद्दों जो है चूक जाते हैं ना, उन मुद्दों पे जो है बात करके वो जो मीन्स आगे बढ़ाना चाहते हैं स्टूडेंट यूनियन को जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आता है। इसलिए हाँ, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ और होप करती हूँ कि वो ही जीते। और जेएनसी में आप लोग तो कुछ सिचुएशन, अभी आप वहाँ पे रह रहे तो सिचुएशन फेस कर रहा होगा, तो उसके बारे में क्या उसने मुद्दा उठाया है आप लोगों के बारे में? जी एक्चुअली जेएनसी में जो है पीजी कोर्स जो है 2011 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था ना, लेकिन अभी तक देखा जाए तो यहाँ में पीजी का कोई भी कंपाउंड नहीं है। एंड जहाँ तक हॉस्टल की बात किया जाए तो हॉस्टल में भी पीजी का कुछ भी रोल ही नहीं, और पीजी का मीन्स रिजर्वेशन सिस्टम ही नहीं होता है। जब एक्चुअली जेएनसी में यूजी और पीजी दोनों पढ़ने के कारण से ज्यादातर जो है इम्पोर्टेंस जो है पीजी को दिया जाता है, यूजी को दिया जाता है, और पीजी मान लो पीजी का 2-3 सीट मिल जाता है, इसलिए हॉस्टल में भी बहुत तकलीफ होता है वो सब चीज में ना। और स्पेशली जेएनसी में जो है पीजी का खुद का कंपाउंड नहीं है। देखा जाए तो 2011 में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अभी तक वो सभी है ना प्रॉब्लम जो ना। और हेल्थ एंड हाइजीन का बात किया जाए तो हेल्थ एंड हाइजीन भी बहुत खस्ता है। एक्चुअली कोई भी स्टूडेंट लीडर अभी तक आके मौसम का जो है जायजा नहीं लेता है, इसके कारण से ये भी बहुत तकलीफ होता है ना। और फिर जब क्वालिटी एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, अभी तक देखा जा सकता है कि जेएनसी में ये सब हालत बहुत तकलीफ है ना। इवन यहाँ में जेएनसी में सिर्फ 4 डिपार्टमेंट है ना पढ़ने के लिए, लेकिन चारों डिपार्टमेंट को जो है क्लासेस भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जब यूजी का क्लासेस खाली होता है तब पीजी को जो है क्लासेस मिलते हैं। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सुनने के लिए मिले। हाँ, कुछ पीजी के लिए कुछ प्रोविजन जो है वो लोग कर देगा, ऐसे स्पीच में सुनने के लिए मिला था। तो मैं तो सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में बात किया गया है।